Boards are over and now there's this weird feeling, right? A bit of relief, a bit of confusion, and most of you must be thinking, what now? Some of you are probably like, okay, now let's chill for a bit, and some of you must be thinking कि अभी time है, now I can change things around. Honestly, this is exactly when things can change. If your boards went well, great. But if they didn't, तुम्हारे पास अभी भी time है. But the one thing that you need to start doing from right now is mocks. But here is the thing, just giving mocks isn't enough. The real improvement starts when you sit down and analyze. कहाँ पे तुम्हारी गलती हुई है, कहाँ पे तुम और इम्प्रूव कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम हो रहा है, कहाँ पे तुम्हारे टाइमिंग इश्यूज हैं, कहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ है और कौन सी तुम्हारी वीकनेस है. जब ये सारी चीज़ें तुम बैठोगे और एनालाइज करोगे और तब इम्प्रूव करोगे तो ही तुम्हारे मॉक्स देने का कोई फ़ायदा है. सो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली अबाउट दिस. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स. देखो, if you're watching this video just after your boards and your exams are just a few weeks away, then you should have already started. But don't panic if you haven't, because there's still time to make a difference. Start giving mocks immediately. Not tomorrow, not next week, today. If your syllabus isn't 100% done, then it's okay, bhai. Mocks will actually help you to figure out what to revise and how to revise smartly. And for those who are watching this video a little earlier in their prep journey, maybe 2 to 3 months ago और उससे भी ज़्यादा, so please don't wait for that perfect moment, because that perfect moment will never come. Most of the people procrastinate by saying that पहले एक बार मैं syllabus पूरा कर लूँ, उसके बाद mock दूंगा. जब तक मेरा syllabus पूरा नहीं होता तब तक तो मैं mock दे ही नहीं सकता. Or maybe I don't want to get demotivated by seeing those low scores and all. But trust me, I've been there too, and that perfect moment will never come. ऐसी कोई चीज़ exist करती ही नहीं है. But you have to learn this thing that mocks are not a test of your preparation, but they are a part of your preparation. So mocks will actually tell you कि आप कहाँ पे weak हो, कौन से आपकी weaknesses हैं, कौन सी आपकी strengths हैं, आपका mind under pressure कैसे काम करता है, and how to actually manage your time in that pressure. So in fact, if you start giving mocks early, so you will build your exam temperament. You will know how to sit straight for those 120 minutes, and under that pressure, how to apply whatever you are studying. So अगर आपके पास you have more than a month or you have 2 to 3 months, then start giving mocks once a week or twice a week. Or if you have 30 to 40 days, then start giving at least 2 to 3 mocks per week. And last के कुछ 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर give mocks on alternate days. और अगर आप daily दे सकते हो, then start giving them daily. So now let's get into the most underrated part, how to take mocks seriously like a actual exam. Because देखो, mocks are not just your test for time pass, they are your rehearsal. Imagine you have to perform a play on stage, so you'll not go directly to the stage without practicing. No, right? You'll practice the act. So treat mocks like that only. Your actual exam is that play and you have to act in those mocks. So the first rule is treat every mock like a real thing. ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि एक सेक्शन अभी दे देता हूँ, एक सेक्शन बाद में दे दूंगा, एक सेक्शन कभी और दे दूंगा. Sit straight for those 120 minutes. It's not be like I'll check this formula and give this. No distractions, nothing. It's not that कि मुझे नींद आ रही है, मैंने 2 सेक्शंस दे दिए, थोड़ी देर रील स्क्रॉल कर लेता हूँ and I'll continue another section बाद में. No, sit straight for 120 minutes at a proper desk without any distractions and give that mock. Now here when things get interesting, you need to have a proper strategy before giving a mock. It's not like कि मुझे जो आता है I'll attempt that. You can go with round wise strategy. For example, in round 1 attempt all easy questions like मैंने 10 या 15 सेकंड में पढ़ा, ये मुझसे हो रहा है, I'll attempt it and then go to the next question. In round 2, you will flag those questions जो कि आपसे 15 या 20 सेकंड में आपने एक बार पढ़े. You know that I know this and if I have थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो मैं ये सॉल्व कर लूँगा. Those are your round 2 questions. And in round 3, those hard questions जो कि आपसे पढ़ने के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं and you need बहुत ज़्यादा टाइम to solve. तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बच जाता है, if time allows, then you will solve those round 3 questions. और अगर आपसे राउंड वाइज स्ट्रैटेजी नहीं होती है तो you can go to topic वाइज स्ट्रैटेजी. उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कि आप क्वांट
सॉल्व कर रहे हो एंड इन क्वांट्स यू आर गुड एट अर्थमेटिक। तो सबसे पहले यू विल सॉल्व सारे के सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस एंड देन यू विल मूव ऑन टू अर्थमेटिक के बाद यू आर सेकंड बेस्ट एट नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तुमने अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, देन यू विल गो टू नंबर सिस्टम, ऐसे करके। एंड अगर तुमसे ये भी नहीं होता है देन फिगर आउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी तुम पे एक्चुअल वर्क करती है। सो फॉर दैट यू हैव टू अटेम्प्ट मल्टीपल मॉक्स एंड प्लीज डोंट स्टक ऑन अ क्वेश्चन फॉर टू लॉन्ग। आप एक क्वेश्चन पढ़ लो एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट इन 15 to 20 seconds और at max 30 to 40 seconds, then please it's a red flag. Please move on. And second thing, please develop this sense that 15 to 20 seconds के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ते हो, you have to realize that is this question worth this much of time, so that आपको पता चल सके कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है एंड कौन से क्वेश्चन पे आपको एक्चुअली अपना टाइम देना है। एंड दिस इज अ स्किल, और ये स्किल कहाँ से आएगी? अगेन कंसिस्टेंटली मॉक्स देने से। ऑल्सो नेवर कैरी इमोशनल बैगेज इन एनी मॉक। हो सकता है मॉक देने से पहले आपके घर के अंदर कोई सिचुएशन हो गई हो या फिर आपके प्रीवियस मॉक्स अच्छे नहीं गए हो, उनमें आप बहुत ज़्यादा ही लो स्कोर करते आ रहे हो, सो यू आर वेरी डीमोटिवेटेड कि इस मॉक में मेरा गंदा ही स्कोर आने वाला है, मैं क्या ही करूँगा देख के। नो, प्लीज ट्रीट एवरी मॉक लाइक अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज आपके एग्जाम डे के अंदर इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू परफेक्टली। सो जब तक आप मॉक्स नहीं दोगे और आपने सारी की सारी सिचुएशंस हैंडल पहले से नहीं कर रखी होंगी, तो फिर आप एक्चुअल एग्जाम के अंदर भी मेसअप करके आ सकते हो। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनालाइजिंग योर मॉक्स। बिकॉज सी, जस्ट गिविंग मॉक्स अलोन won't make you better until and unless you sit down, review your performance and fix your mistakes. So for this I am using after boards के mocks, और वो मैंने अपनी खुद के प्रिपरेशन के टाइम भी यूज किए थे। एंड द थिंग इज, मैं अपने खुद के मॉक्स यूज करने वाली हूँ टू एनालाइज एंड मेक यू एक्सप्लेन दैट हाउ यू कैन एनालाइज योर मॉक्स, हाउ यू कैन वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर बोर्ड्स के एनालिटिक फीचर्स में थोड़ा सा कॉमन सेंस है, सो आई कैन इजीली एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, सो लेट्स गो। सो हाउ टू एनालाइज अ मॉक प्रॉपरली। So सबसे पहले please stop obsessing over scores, like 200 plus feels great, but please ये सब मत देखो। सबसे पहले आप ये देखो कि what went wrong, आपने कहाँ पे गलती करी है। Is it a silly mistake, is it a conceptual mistake, or is it time pressure? And उसके बाद work on those mistakes. And the thing is, please ये देखो कि are you not repeating the same mistakes again and again? एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 4 to 5 मॉक्स आप लोगों को एक पैटर्न देखने को मिलेगा। सो एनालाइज दैट पैटर्न, फिगर आउट दैट पैटर्न एंड वर्क ऑन दैट। मे बी आप लोगों को ऐसा लग सकता है दैट आई एम गुड इन क्वांट्स, स्पेशली क्वांट्स का अर्थमेटिक टॉपिक तो मेरा बेस्ट है, बट व्हेन यू विल सी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आपकी अगर हो रही हैं तो अर्थमेटिक के अंदर ही हो रही हैं। तो यू हैव टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स इन मॉक्स। लेट मी ओपन आफ्टर बोर्ड्स का प्लेटफॉर्म एंड ओपन कोई भी मॉक एंड देन आई विल टेल यू। सो कम हियर। तो सबसे पहले सी, दिस इज आफ्टर बोर्ड्स का प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले लेट्स गो टू मॉक्स, ओके, एंड लेट मी ओपन कोई भी एक मॉक। ओके, सो आई विल ओपन दिस मॉक 15। सो सबसे पहले मॉक स्पॉटलाइट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ट्रैक, एक क्वेश्चन के अंदर आई हैव स्पेंट 6 minutes and 28 seconds, नेगेटिव मार्किंग इज -14 एंड क्वेश्चन पिकिंग इज लाइक जितने भी इजी क्वेश्चन से क्या मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट किए हैं। सो देयर आर 9 इजी क्वेश्चंस एंड उसके अंदर आई हैव अटेम्प्ट सारे के सारे। ओके, तो देखो अब हमने मॉक खोल लिया, ये सारी चीजें ओके हमें पता चल गई, बट हमें करना क्या है? सबसे पहले गो एंड सी द करेक्ट क्वेश्चंस, द रॉन्ग क्वेश्चंस एंड देन द स्किप क्वेश्चंस। उसके अंदर यू हैव टू सी दैट ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट है, बट चेक इफ यू सॉल्व देम एफिशिएंटली। क्या तुमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया है? क्या तुम इस क्वेश्चन को ज्यादा फास्टर वे में कर सकते थे? इन रॉन्ग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द मिस्टेक, सी क्या ये कैलकुलेशन एरर है, क्या ये कंसेप्ट गैप है, या फिर तुम्हें सब कुछ आता था बट तुमने क्वेश्चन ही मिस इंटरप्रेट कर लिया। और स्किप क्वेश्चंस में देखो कि तुमने उस क्वेश्चन को जो स्किप किया है क्या वो तुम्हारे लिए राइट डिसीजन था? तुमने क्वेश्चन स्किप तो कर दिया बट कहीं उसके ऊपर तुमने 4 मिनट वेस्ट करी और उसके बाद तो स्किप नहीं किया, बिकॉज दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर अ ट्रैप क्वेश्चन। ट्रैप क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि मान लो एक क्वेश्चन के ऊपर तुमने 10 मिनट वेस्ट कर दिए बट वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। ऐसे ही देखते हैं। लेट्स सी इन द मॉक। नाउ लेट्स कम टू MCQ। थर्ड क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने 2 minutes and 3 seconds लगाए हैं एंड ये स्टिल गलत हो गया है मेरा। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने इसको बुकमार्क भी कर रखा है एज कंसेप्चुअल मिस्टेक, बिकॉज आई हैव अटेम्प्टेड इट 1 साल पहले, तो आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग बट आई हैव बुकमार्क्ड इट। सो अभी मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ कि इसके अंदर मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी। तो कम टू 5th क्वेश्चन।
यहाँ पे this is an easy question and I have spent 2 minutes and 17 seconds on this. So I can save this 1 minute from here and can use this to one of the skip questions wala thing. Let's move on to that as well. Functions 1 minute 14 seconds. See 12th question. इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, आई हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज ऑफ द टाइम प्रेशर, बिकॉज ये इजी क्वेश्चन था, इस पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करती या फिर एकदम ठंडे दिमाग से सोचती तो आई कैन इजीली फिगर इट आउट कि इसको कैसे करना है, बिकॉज ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है और इसका फॉर्मूला मैंने याद भी कर रखा था एंड आई हैव प्रैक्टिस दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर आई हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन क्योंकि मुझसे बना ही नहीं. बट व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज कि इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने सिर्फ 31 सेकंड स्पेंड किए, दैट इज फेयर इनफ. इतना टाइम आपको लग जाएगा एक क्वेश्चन को डिसाइड करने में दैट यू हैव टू स्किप इट और नॉट. सी 20th क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर 1 मिनट एंड 13 सेकंड्स इन्वेस्ट किए बट स्टिल मैंने इसको गलत कर दिया. What my mistake is, silly mistake करी है मैंने यहाँ पे कुछ तो, because I have bookmarked it. You can do the same thing while analyzing. Bookmark the questions जो कि आपको लगता है कि मैंने गलत कर दिए, ये मेरी mistakes थी, and revise them थोड़े दिन बाद. Because mocks के questions को भी revise करना is equally important. Because memory beats logic sometimes. In exam, maybe you won't be able to apply your 100% brain or 100% logic under pressure. तो अगर आपने वैसा ही क्वेश्चन एक बार पहले भी या 2 बार पहले भी कर रखा है and you have revised them, so you can solve that question in 10 seconds and maybe most of the students won't be able to make that question. So this will give you an edge in your exam. Okay, so now come to 23rd question. इसके ऊपर मैंने 3 minutes and 28 seconds spend किए हैं but still मैंने इसको गलत कर दिया. The trap questions which I am talking about is like this. PNC का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट मैंने इसको गलत कर दिया and what I've bookmarked it, silly mistake. Now let's move to the SWOT analysis of this. So here in the SWOT analysis, it tells you that what you are genuinely good at, where you can improve, where you are wasting your time and what's constantly pulling you down. So ये जो SWOT analysis है, this is of latest 10 attempts in algebra. There are easy 23 questions जिसके अंदर से मैंने सिर्फ 7 करेक्ट किए हैं, 9 रॉन्ग कर दिए हैं एंड 7 को अनअटेम्प्टेड छोड़ा है. एंड मीडियम, there are total 68 मीडियम क्वेश्चंस जिसके अंदर 32 करेक्ट हैं. बट अगर मैं सक्सेस रेट देखा जाए तो दैट इज 74.4%, जो कि इजी के अंदर था 43.8%, एज मैंने गलत ज्यादा किए थे एंड करेक्ट कम किए थे. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऑलवेज इंक्रीज द सक्सेस रेट. आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट करना है और आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं उनको आपको कम करते जाना है. व्हाइल एनालाइजिंग द मॉक्स आपको देखना है आपकी कौन सी भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं और वो रिपीट तो नहीं हो रही है. यू हैव टू सी दैट पैटर्न एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट. मान लो कि आपको कोई एक फॉर्मूला है वो आपको गलत ही याद है एंड इन एवरी क्वेश्चन इन एवरी मॉक आपको गलत ही लगा रहे हो. सो यू हैव टू एनालाइज दैट कि ओके यहाँ पे मेरी गलती हो रही है, आई हैव टू रिवाइज माई फॉर्मूलाज, आई हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग सो दैट मेरा मॉक स्कोर इंक्रीज हो. अगर आप बार बार क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते जा रहे हो जिसकी वजह से आप बाकी क्वेश्चन पे उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे, तो बिकॉज ऑफ दैट आप मिस्टेक करते जा रहे हो. ओके, सो नाउ कम टू SWOT एनालिसिस. यहाँ पे देयर आर स्ट्रेंथ, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी एंड वीकनेस. दिस विल टेल यू कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी थ्रेट कौन सी है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कौन सी है और आपकी वीकनेसेस कौन सी है. तो द थिंग इज यू हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड यू हैव टू ऑलवेज टेक फायदा ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अब मेरे को पता है कि नंबर सिस्टम जो है यहाँ पे दिस इज टेलिंग मी दैट इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करके आई कैन इम्प्रूव दैट एंड आई कैन स्कोर 100% इन दैट. अब अगर यहाँ पे मैं अपने नंबर सिस्टम के अंदर जाऊँ, सो सी इन अपॉर्चुनिटीज व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू, इसके अंदर यू हैव टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट रेट. आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो उनकी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है बट आप कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट रेट एंड ऑल्सो आप जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो गलत नहीं होने चाहिए. यू हैव टू वर्क ऑन दिस एंड यू आर गुड टू गो. आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा ऐसे उठाना है, सी दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड देन उस टॉपिक पे वर्क करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, बट द थिंग इज एक्यूरेसी शुड बी हाई एंड लाइक दिस आप अपने मॉक्स का स्कोर इंक्रीज कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू जिपमैट. आई रिमेंबर मैंने जब अपना फर्स्ट मॉक दिया था वो भी मैंने अच्छे से नहीं दिया था. आई हैव डन इट लाइक अभी मैंने क्वांट्स दे दिया, थोड़े टाइम बाद आई विल गिव एलआर एंड थोड़े टाइम बाद आई विल गिव
VA. So उसकी वजह से you can see मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव कुछ अच्छा नहीं आया, that is only 265. But next mock में I have not made that mistake and ऐसे ऐसे करके I've increased my score only. I'll open my latest mock. Now सबसे पहले mock spotlight. Question trap 10 minutes and 15 seconds. So on a question, I have spent 10 minutes and 15 seconds. So in QA, this question in which I have spent 10 minutes and 15 seconds, this is my trap question. And see, this is so easy question, but still on this question, I have spent 10 minutes and 15 seconds. So in actual exam, अगर मैं यही time किसी और question पे spend करती, तो I could have make that question correct. See, for first question है, इसके अंदर I've bookmarked it as silly mistake because what is the unit digit in the product? So this is so easy question. इसके अंदर okay 7 की power है 153, so this is 4k plus 1. So if this is 1, so इसका जो unit digit आएगा that is 7 only, and 7 into 1 because 1 का तो कुछ भी power है उसका unit digit आता है 1, so 7 into 1 will be 7. I spent just 34 minutes 34 seconds on this question, but I've marked it as 9. Why? God knows. I have marked it as silly mistake. See, if we go back to analytics, and in this, here is peak, like 181 students have scored 50.2 percentile, and this is where I stand. I have scored 93.5 according to this. In real, my GPMAT percentile is 99.66 something. Now we'll see topic distribution. Arithmetic, I've told you I'm good at it. My all arithmetic chart is green. मैंने अपना कोई भी मार्क्स arithmetic के ऊपर एटलीस्ट लूज नहीं किया है. इन ज्योमेट्री 4 मार्क्स मैंने सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर लूज कर दिए हैं. सो अब मैं इससे क्या देख सकती हूँ दैट आई हैव टू वर्क ऑन ज्योमेट्री मोर, एंड अर्थमेटिक मेरी स्ट्रॉन्ग है. मेरे को अर्थमेटिक में सिर्फ आई डोंट हैव टू फॉरगेट ऑल द फॉर्मूलाज, और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बट आई हैव टू वर्क मोर ऑन ज्योमेट्री. नाउ लेट्स मूव टू VA. VA के अंदर सी मैंने कितने ज्यादा क्वेश्चंस गलत करे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन जो कि मेरा गलत है, एंड दैट इज वोकैबुलरी का. इडियम्स एंड फ्रेजेस का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन गलत करा है. फिर मैंने ग्रामर का क्वेश्चन गलत करा है. फिर मैंने पैराजंबल का क्वेश्चन गलत करा है. फिर मैंने वर्बल एनालॉजीज का. अब द थिंग इज, अगर मैं इससे देख रही हूँ तो मैं ग्रामर और वोकैबुलरी के क्वेश्चन ही अभी तक मैंने गलत करे हैं ज्यादा से ज्यादा. अगेन वोकैबुलरी क्वेश्चन गलत है, अगेन वोकैबुलरी क्वेश्चन गलत है, अगेन ग्रामर का क्वेश्चन गलत है, अगेन वोकैबुलरी का क्वेश्चन गलत है, एंड ग्रामर का. तो अब मैंने इससे क्या पता चला मेरे को कि मुझे अपनी वोकैबुलरी एंड अपनी ग्रामर पे सबसे ज्यादा वर्क करना है. लेट्स मूव टू जिपमैट. सारे के सारे जिपमैट के मॉक्स खोलती हूँ मैं. ओके, अब उसके अंदर यहाँ पे सारे के सारे ये क्वेश्चंस आ गए हैं. आई कैन गो ऐसे, बट लेट मी गो सेक्शन वाइज. सबसे पहले लेट मी गो टू QA बिकॉज मेरे को QA के क्वेश्चन देखने हैं. देन डिफिकल्टी मैं दे जाती हूँ इजी एंड कंसेप्चुअल. आई हैव ओपनड इट. अब देखो स्टिल इसके अंदर यहाँ पे सारा का सारा ग्रीन नहीं है. नेक्स्ट नाउ इन दिस क्वेश्चन जिपमैट मॉक 2 मैंने 14 मिनट इन 51 सेकेंड्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर स्पेंड किए हैं, एंड आई बुकमार्क्ड इट एज सिली मिस्टेक. मतलब बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक मैंने अपना एक मार्क गवाया, मैंने अपना 5 मिनट गवाया विच आई कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स सो दैट आई कैन गेन मोर मार्क्स. तो अब मैं क्या करूँगी, अब थोड़े टाइम बाद मैं जाके मैं बुक मार्क्स पे जाऊँगी. ठीक है, मैंने यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी, मैंने जिपमैट खोला, अब बुकमार्क्स में गई, मैंने सिली मिस्टेक. ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने सिली मिस्टेक की वजह से गलत करे हैं. तो आई हैव टू सी कि ऐसी मेरी कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक होती जा रही है जिसकी वजह से मैं इतना टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मेरे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होते जा रहे हैं, एंड इन नेक्स्ट मॉक मुझे वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है. ठीक है, अब जैसे कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि मैं कंसेप्चुअल मिस्टेक पे गई. अब जिपमैट के अंदर हुई ही कम है. लेट मी गो टू IPMAT इंदौर. सारे के सारे मॉक्स पे जाते हैं. आई हैव मार्क्ड दिस मच ऑफ क्वेश्चंस एज कंसेप्चुअल मिस्टेक्स. तो अब मेरे को नाउ आई विल कम हियर एंड आई विल चेक कि जो मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थी, नाउ डू आई नो ऑल दीज कंसेप्ट्स अच्छे से. आई विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस फिर से, एंड आई हैव टू सी कि क्या अब मैं सारे के सारे क्वेश्चन सही से कर पा रही हूँ, एंड इन बाकी के मॉक्स, इन आने वाले मॉक्स, क्या मैंने वो सेम मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं करी हैं. I have to see that. So once you've identified your weak areas, don't just say कि हाँ ये गलती हो गई मेरे से. Make a plan. If you're weak in RCs,
Solve daily RCs. By the way, Afterboards also gives a free daily RC, so जाओ और उसको अटेम्प्ट करो. ओके, अगर आपकी स्पीड क्यूए के अंदर लो है तो टाइमर लगाओ एंड डू स्पीड ड्रिल्स कि मुझे इतने टाइम के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे पर क्वेश्चन इतना ही टाइम देना है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ. एंड सपोज अगर आप डिसीजन मेकिंग में एलआर में आप कहीं गलती कर जा रहे हो तो प्रैक्टिस एलिमिनेशन टेक्निक्स. सो हमारा गोल क्या होना चाहिए? दैट ईच मॉक शुड फिक्स एटलीस्ट वन ऑफ योर वीकनेस. ऑल एक्सेस कोर्स के अंदर यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स एज वेल. जिस भी टॉपिक के आपको चाहिए यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम आफ्टरबोर्ड्स. You can practice questions as well. Unlimited sectional test है तो आपको जितने मर्जी चाहे आप उतने दे सकते हो. Also आफ्टरबोर्ड्स के ऊपर ही you will get फ्लैश कार्ड्स as well and फ्री मॉक्स भी तो है. जाओ और एटलीस्ट फ्री मॉक्स तो प्लीज दो, एज बहुत सारे बच्चों ने वो दिए होंगे. सो यू कैन कंपेयर योरसेल्फ अमंग सम 2000, 3000, 4000 और मेनी मोर स्टूडेंट्स एज वेल. ऑल्सो मॉक्स स्कोर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. आज 100 आया है, कल 200 आ जाएगा. दैट इज इम्पॉसिबल. प्लीज रियलिस्टिक गोल्स बनाओ सो दैट आपको भी इम्प्रूवमेंट दिखे और आपको डिसअपॉइंटमेंट ना मिले. ट्रस्ट योर जर्नी, एनालाइज स्मार्टली एंड कीप ग्रोइंग. और एक बहुत स्मूथ अप्रोच के लिए आफ्टरबोर्ड्स तो है ही. जाओ आफ्टरबोर्ड्स के मॉक्स देखो, सबसे पहले फ्री वाले अटेम्प्ट करना सो दैट यू कैन बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड ऑल्सो डीप एनालिटिक्स, स्वॉट एनालिसिस और बाकी बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे यूज करने हैं. तो यू कैन परचेज द कोर्स एज वेल एंड कूपन कोड GGalaxy यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. Like, share and subscribe if you found this video helpful and drop your doubts in the comment section below. I'll reply as many as I can. और आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हो प्लीज वो भी सजेशन कमेंट सेक्शन में दे देना. ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट टुगेदर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज गरिमा शर्मा साइनिंग ऑफ.